Hello students. So today we are here to continue our chapter which was the living world, है ना। तो कल हमारी फर्स्ट क्लास थी और ये चैप्टर बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल। और मैंने आपको कल बताया था कि द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम 0 to 1 क्वेश्चन। कभी कभी इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, बट दिस इज़ द बेसिक चैप्टर। ये एक बेसिक चैप्टर है और ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर में कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। जैसे कल की हमने क्लास पढ़ी थी, तो सबसे पहले हमारा जो क्लास लेने का ट्रेडिशन है उसमें हम क्या करते हैं, हम एक रीकैप करते हैं। रीकैप कि हमने रिवीजन, हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, तो रीकैप में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। और पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कैरेक्टर्स of living organisms। And in this we are going to make a table। हम एक टेबल बनाएंगे और the table says serial number, character, important feature, then defining feature, then reasons for being, or not being the defining feature। इसमें what I have told you yesterday, the first important feature is growth। Is it an important feature of all living organisms? Yes। Is it a defining feature? No। क्यों? Reason is as growth can take place in non-living objects also। In non-living objects also। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है, उनके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, हमारे अंदर इरिवर्सिबल होती है, उनके अंदर रिवर्सिबल होती है। दैट इज अनदर थिंग। नाउ नंबर 2 इज रिप्रोडक्शन। Reproduction is an important feature, but it is not the defining feature. What is the reason behind it? Many organisms are unable to reproduce। बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल हिनी एंड सो ऑन। नाउ और वर्कर हनी बीज, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। देन नंबर 3 वी हैव मेटाबॉलिज्म। Metabolism is an important feature and also the defining feature. Then number 4th, sensitivity, या जिसको we call it as consciousness। This is also the defining and important feature. And last one is
cellular organization. This is also important feature and both the defining feature. Now, what are the reasons of these three? इन तीनों का same reason है, because they do not occur in non-living objects. So, this is the recap of the important characteristics of what? Important characteristics of human or living organism. Sorry, living organism. Now, हमने कल एक और टॉपिक पढ़ा था, that was nomenclature. Nomenclature. Now, what is nomenclature? The process of naming the organisms or to give a scientific name to an organism is termed as nomenclature. And what is the aim behind nomenclature? Nomenclature क्यों करते हैं? ताकि वो स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में एक नाम से जानी जा पाए. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका. अब this type of nomenclature wherein the scientific name is written like this is termed as binomial nomenclature. क्या कहते हैं उसको? Binomial nomenclature. और binomial nomenclature के कौन फादर हैं? Who is the father of binomial nomenclature? He is Sir Carolus Linnaeus. तो इन्होंने क्या ये जो टेक्निक थी वो बनाई. एंड देयर आर सम रूल्स. रूल नंबर 1, all the scientific names are taken from Latin language or they are Latinized. Number 1. What is the reason behind it? उसका क्या reason है? Reason है because Latin is a dead language. It is neither spoken in any country nor it is the official language. कहीं बोली नहीं जाती, कहीं लिखी नहीं जाती और उसमें कोई changes नहीं हो सकते. वो dead language है. Second rule is each scientific name consists of two names or terms. जो इसमें first name होता है या जो first term होता है that is the generic name. ये क्या है? This is the generic name and it denotes the genus of the organism. It always starts with a capital letter. Next rule, the second name is the specific epithet. A specific epithet and it denotes the species of the organism. It always starts with a small letter. ये हमेशा छोटे लेटर से शुरू होती है. And both these names, if they are printed or typed, they are printed in italics. अगर ये टाइप होता तो ये कैसे टाइप होता? ऐसे italics, टेढ़ा टेढ़ा. जो पहले दो वर्ड्स हैं वो ऐसे टाइप होते हैं इटैलिक्स में, लेकिन इसको लिखना मुश्किल है. बट इफ दे आर हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन. अलग अलग हम इसको अंडरलाइन करते हैं. एंड ये जो आखिरी में एक और टर्म लिखा है दिस इज द थर्ड टर्म और ये क्या डिनोट करता है? साइंटिस्ट हु नेम्ड इट. उस साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने इसका नाम रखा है. फॉर एग्जाम्पल कैरोलस लीनियस. तो लीनियस के शॉर्ट फॉर्म में
LINN डॉट एब्रीवेटेड फॉर्म में। और ये ना ही इटैलिक्स में लिखते हैं ना ही इसको अंडरलाइन करते हैं, इट इज़ रिटन स्ट्रेट। देखो ये दोनों टर्म्स इटैलिक्स में छपे हैं बट ये स्ट्रेट रोमन फॉन्ट में छपा है। एंड मैनी साइंटिस्ट्स दे डू नॉट फॉलो दिस रूल, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये साइंटिस्ट का नाम होगा तो क्या होगा, अगर साइंटिस्ट का नाम होगा तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नहीं बचेगा, ये कौन सा नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बेटा ये हमने चीज़ें कल पढ़ी थी, अब जो हमें आज पढ़ना है वो है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद हम दो टर्म्स भी पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे टॉटोनिम्स और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑटोनिम्स। क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, और आज ही हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो द फर्स्ट टॉपिक इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल nomenclature. So this trinomial nomenclature, it was given by Haeckel and Strickland. दो साइंटिस्ट ने दिया था, given by Ernst Haeckel and Strickland। और इस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ईच साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ 3 नेम्स और टर्म्स। बाइनोमियल में तो 2 ही टर्म्स है ना, जेनस और स्पीशीज, इसमें 3 टर्म्स होते हैं और वो जो तीनों टर्म्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब प्लांट्स के लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग, ठीक है। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू मेक अ टेबल, सीरियल नंबर, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, right, then first term, then second term, then third term। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जरा एनिमल्स की, ठीक है। तो एनिमल्स में नंबर 1 एनिमल, एनिमल्स में जो फर्स्ट टर्म होता है इट स्पेसिफाइज द जेनस, सेकेंड टर्म स्पेसिफाइज द स्पीशीज एंड थर्ड टर्म डिटरमाइन द सब स्पीशीज। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। एग्जाम्पल, ह्यूमंस। बेटा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस। Now, second one is plants. Plants may be, the first term is genus,
second term is species, third term is variety. ये भी आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं, ठीक है, ये भी हम एग्जाम्पल से ही पढ़ेंगे. द एग्जाम्पल इज कैबेज. कैबेज माने पत्ता गोभी. इसकी नाम है ब्रासिका, ओलिरेशिया, कैपिटेटा. ब्रासिका ओलिरेशिया कैपिटेटा. Done. And the third one is microbes. Microbes में the first term is genus, second term is species, and third term is strain. क्या है? strain है. इसका भी एक एग्जाम्पल लिखते हैं. बैक्टीरिया ई कोलाई. इसको कैसे लिखेंगे? इसका जेनस है एस्चेरिशिया कोलाई RY13. ये इसका स्ट्रेन है. तो इसमें जो थर्ड टर्म है, दैट थर्ड टर्म इज सब स्पीशीज इन एनिमल्स, वैरायटी इन प्लांट्स एंड स्ट्रेन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब आप इसका पैटर्न में देखिए फटाफट. इसमें आप क्या लिखेंगे? दी थर्ड टर्म. पॉइंट नंबर ए, starts with a small letter in animals and plants, but may start with capital letter in some and a small letter in some other microorganisms या microbes. जैसे ई कोलाई में तो बड़े से शुरू हुआ है, हो सकता है और माइक्रोब में छोटे से भी हो जाए. तो यहाँ पर ये रूल थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट प्लांट्स और एनिमल्स के लिए स्पीशीज वाले रूल फॉलो होंगे. बी ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स और सेपरेटली अंडरलाइंड. ब्रैकेट में हमने लिख दिया इफ हैंड रिटन. डन. तो ये कुछ रूल्स हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के. ऑल डन. नाउ लेट्स मूव ऑन. हमें दो छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने हैं. वन इज टॉटोनिम. क्या है टॉटोनिम? टॉटोनिम्स. तो टॉटोनिम्स के बारे में, these are the scientific names in which generic name and a specific epithet
आर सेम। जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था ना, अगर यहाँ होता मैंजीफेरा मैंजीफेरा तो उसको टॉटोनिम कहते हैं, और जो टॉटोनिम्स है ना वो खाली ज़ूलॉजी वाले मानते हैं। These are only accepted by zoological system of nomenclature। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स क्या होंगे? नंबर 1, कोबरा। कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है? नाजा नाजा, तो ये टॉटोनिम हो गया। नंबर 2, गोरिल्ला का हो गया गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। नंबर 3, रैट का है रेटस रेटस। आउल, आउल का है ब्यूबो ब्यूबो। टोड, टोड का साइंटिफिक नेम है ब्यूफो ब्यूफो। एक होता है ब्लैक बक, चिंकारा, काला हिरण, उसका होता है ब्लैक बक। इसका होता है गजील गजील। तो ये आपको याद कराने के लिए कि टॉटोनिम्स में पहले 2 नेम्स बिल्कुल सेम होते हैं। ऐसे ही जैसे आपका टॉटोनिम्स हैं, ऐसे ही एक और नाम होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑटोनिम्स। ऑटोनिम्स कौन से साइंटिफिक नेम्स होते हैं? साइंटिफिक नेम्स in which a specific epithet and subspecies names are same। These are mostly accepted by zoological nomenclature। Mostly accepted by zoological nomenclature। इसके भी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं बेटा। तो इसके एग्जाम्पल्स, नंबर 1 इज ह्यूमंस। इसमें बेटा सेकंड और थर्ड टर्म सेम होंगे, क्योंकि स्पेसिफिक एपिथेट सेकंड टर्म होता है और सब स्पीशीज का नाम थर्ड टर्म होता है। तो हमारा ह्यूमन बींग्स का नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। बेटा ये लाइन अलग है, वो गलती से शायद आपको जुड़ी भी ना लग जाए। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 इज गोरिल्ला, और गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला
गोरिल्ला, गोरिल। समझ में आया? तो ये गोरिल्ला किसका एग्जाम्पल है? टॉटोनिम और ऑटोनिम्स दोनों का ही एग्जाम्पल है। नाउ अब है अगली हेडिंग, दैट इज इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो जैसे ये साइंटिफिक नेम्स कोई भी साइंटिस्ट बनाता है तो इसको एक सोसाइटी क्या करती है? उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसको अप्रूवल देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सबसे पहली सोसाइटी है ICBN। ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें बॉटनी में प्लांट्स के नाम को अप्रूवल मिलता है। नंबर 2 ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें एनिमल्स के लिए ये होता है। फिर नंबर 3 ICVN, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बार बार नहीं लिख रहा हूं, ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर, खाली वी वाला मैंने लिख दिया है। देन नंबर 4 ICBACN, यहां पर बैक स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल। बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। एंड नंबर 5, नंबर 5 क्या है? जल्दी बोलिए। दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ये अलग है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर जो ह्यूमंस कल्टीवेट करते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उससे जो बनते हैं, फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर नॉमेनक्लेचर। हमने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी पूरा कर लिया है, हमने टॉटोनिम्स भी पूरे कर लिए हैं, हमने ऑटोनिम्स भी कर लिए हैं, और हमने कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर भी पूरे कर लिए हैं। कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, all good. Now we are going to start up with classification and systematics. This is a very important topic. Classification. Now क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहीं पर जाते हैं, किसी नई जगह पर घूमने जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, कल्चर, द क्लोथ्स दे आर वेयरिंग, द लैंग्वेजेस दे आर स्पीकिंग, रीजन, रिलीजन, सब कुछ। तो क्लासिफाई करना ज़रूरी है चीज़ों का। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ grouping the organisms on the basis of
similarities and dissimilarities। लेकिन किस में, वो तो हमने बताया नहीं। इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स is called what? It is called classification। तो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन वर्ब है, क्लासिफिकेशन। एंड द साइंस विच इज इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन, उसको आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इनके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो प्रोसेस है, लेकिन जो इसकी साइंस है, जो इसकी साइंस है, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी, the science which deals with what? Deals with, जल्दी बोलिए, वेट अ मोमेंट बेटा। The science which deals with principles and procedures of classification is called taxonomy। Who is the father of taxonomy? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? जल्दी बोलिए। आपके अपने कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब आपको पता है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के 4, मतलब ये जो टेक्सोनॉमी है इसके 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं। 4 बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। और वो क्या है? सबसे पहले अगर हमें किसी को क्लासिफाई करना पड़ेगा तो हम, जैसे सपोज हम जा रहे हैं सबके सब मिलके, सारे बच्चे और मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहे हैं और वहाँ सफारी कर रहे हैं। अचानक से हमारी सफारी जीप में एक एनिमल गिरा, ना ही वो एनिमल रैबिट है, ना ही माउस है, ना ही ऑटर है, ना ही मंगूज है। आपने सब दिमाग लगा लिया, वो आपको कैसा भी नहीं दिखा। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर्स लिखोगे। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, राइट। फिर आप उसकी सिमिलैरिटीज किसी से दिखाओगे, उसको पहचानने की कोशिश करोगे। देन दैट इज आइडेंटिफिकेशन। राइट, आइडेंटिफिकेशन। फिर आप क्या करोगे? उसका एक अच्छा सा नाम रखोगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। नंबर 3 इज नॉमेनक्लेचर। और फिर आप उसे सारे ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दोगे।
नंबर 4th इज क्लासिफिकेशन। और ये जो हमने स्पेसिफिक ग्रुप की बात करी है, तो स्पेसिफिक ग्रुप को हम क्या कहते हैं वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। इससे क्लासिफिकेशन की एक सिंपल डेफिनेशन आ जाएगी। स्पेसिफिक ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टैक्सॉन। और इसका प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है टैक्सा। तो टैक्सोनॉमी की एक और डेफिनेशन हो गई, द साइंस ऑफ ग्रुपिंग the organisms into a specific into a specific taxa is called taxonomy। अब टैक्सा मोर स्पेसिफिकली क्या होता है ये हम पढ़ेंगे बस थोड़ी देर के बाद। तो अभी हमने टैक्सोनॉमी की के 4 बेसिक प्रोसेसेस सीखे हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बहुत टाइम से क्या हो रहा था कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब हम क्या कर रहे थे, हम लोगों के बारे में, मतलब स्पीशीज़ के बारे में जानना चाह रहे थे, उनकी डाइवर्सिटी को पढ़ रहे थे, है ना, और पढ़े जा रहे थे। हमने क्लासिफिकेशन भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गए। लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस को, एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी which does classification in a definite and systematic manner. In a definite and systematic manner is called systematics। अब वो ऑर्डर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, एक हायरार्की है, लेकिन इस सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। द टर्म सिस्टमैटिक्स is derived from Latin word systema। और सिस्टीमा का मतलब होता है इन अ डेफिनेट ऑर्डर। और इस वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था? दिस टर्म was first used by Carolus Linnaeus in his book, और उस बुक का क्या नाम था? सिस्टीमा नेचुरी। सिस्टीमा नेचुरी, ये ध्यान रखना। इसलिए हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स? जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट।
अब जिसने टर्म दिया है उसी को हम क्या बोलेंगे, फादर। ठीक है, सो फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स, कैरोलस लिनियस। ठीक है, और हु गेव द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स, अब ये जो न्यू सिस्टमैटिक्स है इसका एक फीचर ये है कि ये क्या करती है, इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इट lays emphasis on evolutionary relationships among organisms. And who gave the term new systematics? This term was given by Julian Huxley. ये टर्म जो है न्यू सिस्टमैटिक्स, ये जूलियन हक्सले ने दिया था। और सिस्टमैटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं यहां लिखता हूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर सिस्टमैटिक्स क्या है? What is this? This is arrangement in a proper order, in a proper sequence. और उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो सबसे ऊपर कौन होता है स्कूल में? प्रिंसिपल, उसके नीचे हेड मास्टर्स एंड हेड मिनिस्टर्स, फिर टीचर्स, राइट, फिर लैब असिस्टेंट्स, नहीं फिर लाइब्रेरियन, फिर लैब असिस्टेंट्स, राइट, फिर ऑफिस बॉयज, फिर पियोन्स, ऐसे करके हायरार्की बनी है। तो हायरार्की का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब हमें डिटेल में पढ़नी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, राइट। सो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, तो ये जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है इसमें टोटल कितनी कैटेगरीज होती हैं? 28 कैटेगरीज। 28 कैटेगरीज, और इन्हीं कैटेगरीज को हम कहते हैं रैंक, और इन्हीं को हम कहते हैं टैक्सॉन, और टैक्सॉन का प्लूरल होता है टैक्सा। इन 28 कैटेगरीज में से 7 होती हैं ब्रॉड, ब्रॉड कैटेगरीज, जो हमें याद करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा जो 21 कैटेगरीज हैं वो हमें याद नहीं करनी है। एनी डाउट्स बेटा? आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। नहीं है कोई डाउट? तो 7 ब्रॉड कैटेगरीज में से सबसे फर्स्ट कैटेगरी इज
kingdom. Second one is phylum. अब इसमें एक ट्विस्ट है, ये जो फाइलम है, दिस फाइलम इज फॉर एनिमल्स, तो नीचे मैं एनिमल्स लिख दे रहा हूं, या इसके इक्विवेलेंट कैटेगरी है डिवीजन, और डिवीजन किसके लिए होती है? प्लांट्स के लिए। तो किंगडम हो गया, फिर हो गया फाइलम या डिवीजन, फिर है, ऐसे करता हूं, ये ऐसे सही रहेगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज। These are the 7 broad categories. ठीक है, तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको याद नहीं करना हो, इट्स योर विश, बट वो भी होती हैं 21 इंटरमीडिएट और एक्सेसरी कैटेगरीज। ये कौन सी होती हैं? लेट अस सी। सबसे पहले लाइफ, डोमेन, सब डोमेन, देन सुपर किंगडम, सब किंगडम, देन सुपर फाइलम और सुपर डिवीजन, देन सब फाइलम और सब डिवीजन, then series, sub series, then super class, sub class, infra class, then super order, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, देन सुपर जेनस, सब जेनस, देन सुपर स्पीशीज, उसके बाद सब स्पीशीज फॉर एनिमल्स, वैरायटी फॉर प्लांट्स एंड स्ट्रेन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप ये याद मत कीजिएगा, इसमें से आपको जो याद करनी है वो है ट्राइब। ट्राइब पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं और ट्राइब यहां आ जाएगी। ये एक्चुअली कैसे पढ़ते हैं? नंबर 1 लाइफ, डोमेन, सब डोमेन, सुपर किंगडम, किंगडम, सब किंगडम, सुपर फाइलम, फाइलम, सब फाइलम, या सुपर डिवीजन, डिवीजन, सब डिवीजन, सीरीज, सब सीरीज, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, इंफ्रा क्लास, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, सुपर जीनस, जीनस, सब जीनस, सुपर स्पीशीज, स्पीशीज, सब स्पीशीज और वैरायटी और स्ट्रेन। ऐसे पढ़ते हैं। तो इसमें सब नहीं चाहिए नीट में, क्योंकि पहले पूछा जा चुका है व्हाट इज ट्राइब। तो ट्राइब फॉल्स बिटवीन फैमिली एंड जेनस। अब मैं आपको ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन लिखकर बताता हूं
यहाँ पर। वैसे अभी हमें 4 लोगों के क्लासिफिकेशंस और पढ़ने हैं। तो ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन, हमारी किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया हम क्योंकि एनिमल है तो हमारा फाइलम है कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। हमारी क्लास क्या है? हमारी क्लास है प्राइमेटा। प्राइमेटा में बंदर जैसे और ह्यूमन जैसे लोग होते हैं। हमारा ऑर्डर क्या है? जल्दी बोलो। ऑर्डर, ह्यूमन बीइंग्स का ऑर्डर क्या है? अरे नहीं, सॉरी, हमारी जो क्लास है दैट इज मैमेलिया। हमारी क्लास है मैमेलिया, मैमल्स हैं हम। हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा। हमारी फैमिली है, ह्यूमंस की फैमिली इज होमिनिडी। हमारा जीनस है होमो और हमारी स्पीशीज है सेपियंस। अब ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे हम सब, मैं और आप, हम सब मिलाकर क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम सब क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स, माने होमो सेपियंस। तो आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा है, हमारे 99.9% कैरेक्टर जो हैं वो सेम हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेस, हमारे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते हैं। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो देखो, अभी तो हम होमो सैपियंस हैं, अगर हम ऑर्डर प्राइमेटा में जाते हैं तो हम भी प्राइमेटा में हैं, बंदर भी, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान, सब प्राइमेटा में हैं। तो हमारे उनमें कैरेक्टर्स कॉमन काफ़ी हैं लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। तो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, मतलब कॉमन कैरेक्टर कम हो रहे हैं। और ऊपर जाते हैं मैमल्स में, वी ऑल दी मंकीज, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, काउस, बफलोज, हॉर्सेस, ज़ीब्रा, वो सारे मैमल्स हैं। तो क्या हो रहा है? कॉमन कैरेक्टर तो हम में है क्योंकि हम मैमल्स हैं, लेकिन डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस। अब ये तो कॉमन कैरेक्टर्स हो गए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर जैसे ग्रुप का होता है, जैसे मैमेलिया का जनरल कैरेक्टर्स क्या है? हेयर ऑन फुल बॉडी, टेल, मूवमेंट बाय 4 फुट, ये सब मैमल्स के जनरल कैरेक्टर्स हैं। एक्सटर्नल पिन्ना। लेकिन अलग अलग जब करते हैं, जैसे ह्यूमंस, हम भी मैमल्स हैं, तो हमारी होल बॉडी पे तो हेयर नहीं है, हमारी तो पूंछ नहीं है, हम तो बाइपेडल लोकोमोशन 2 पैर से करते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे जनरल कैरेक्टर्स डिक्रीजेस। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो ये एरो के हिसाब से देखना, इसका मतलब कॉमन कैरेक्टर्स और जनरल कैरेक्टर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? जल्दी बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत दिमाग, आज भी डीएसए में जो हमने आपको पेपर दिया है उसमें इस तरह का हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बढ़ते हैं। ये 7 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इन्हीं को रैंक या टेक्सॉन भी कहते हैं, और टेक्सॉन का प्लूरल होता है टेक्सा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये जेनस क्या होता है। व्हाट इज अ जेनस? जल्दी बोलिए। जेनस होता है स्पीशीज का ग्रुप, फैमिली होती है जेनस का ग्रुप, ऑर्डर होते हैं फैमिली के ग्रुप। तो बस ऐसे तो हर एक के अलग अलग से डेफिनेशन हमें नहीं लिखनी है,
हमें बिल्कुल भी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमें पढ़ना है, और वो क्या है। वो एक टेबल हमें बनानी है, सीरियल नंबर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। फिर हमें किस किस का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सबसे पहले मैंगो, फिर ह्यूमंस, फिर वीट, देन हाउस फ्लाई। राइट, तो इसमें पहले हम कैटेगरीज लिख देते हैं। किंगडम, डिवीजन प्लांट्स के लिए, और फाइलम एनिमल्स के लिए। थर्ड वन इज क्लास, फोर्थ वन इज ऑर्डर, फिफ्थ वन इज फैमिली, सिक्स्थ वन इज जेनस, and seventh one is species. All good? अब सबसे पहले मैंगो प्लांट है, तो किंगडम हो गई मैंगो की प्लांटी। ऐसे ही वीट भी प्लांट, साथ में लेके चलते हैं तो डिफरेंसेस पता चलेंगे। ये भी क्या है, प्लांटी। डिवीजन, मैंगो क्या है, एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्मी। और वीट भी क्या है, एंजियोस्पर्मी। क्लास, मैंगो की क्लास क्या है, जल्दी बोलिए फटाफट। व्हाट इज द क्लास ऑफ मैंगो? मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं बेटा, आप लोग नहीं बताओगे तो कैसा ये होगा, जल्दी बताइए। दैट इज एनाकार्डियेसी, याद रखना है। और वीट की क्या है, पोएसी। और मैं इस पर डिवीजन पर अंडरलाइन कर दे रहा हूं क्योंकि ग्रीन कलर प्लांट्स के लिए। ऑर्डर मैंगो का है सेपेंडेल, तो वीट का है पोएल्स। फैमिली है मैंगो की, जल्दी बोलिए फैमिली के, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। फैमिली है, फैमिली में CEAE लगता है। क्लास क्या है मैंगो की, हाँ क्लास है, ये डाइकॉट है, सॉरी बेटा, डाइकोटिलिडनेई। और वीट की क्या है, मोनोकॉट है, वो मोनोकॉटिलिडनेई। फैमिली है एनाकार्डियेसी, और इधर है पोएसी। राइट, फिर जेनस है मैंगो की मैंजीफेरा, और स्पीशीज है इंडिका। जबकि वीट में जेनस इज ट्रिटिकम। ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 नीट में कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट, वो क्या था, ट्रिटिकम, और इसकी स्पीशीज है एस्टिवम। अब ह्यूमंस की बात करते हैं, मतलब एनिमल वाले जो दोनों बचे हैं, ह्यूमंस और हाउस फ्लाई
दोनों का किंगडम है एनिमेलिया। फाइलम, हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, लेकिन हाउस फ्लाई का फाइलम है आर्थ्रोपोडा। क्लास, हमारी क्लास क्या है ह्यूमंस की? मैमेलिया। लेकिन हाउस फ्लाई की क्या है? इंसेक्टा। ऑर्डर हमारा क्या है? प्राइमेटा। और हाउस फ्लाई का क्या है? डिप्टेरा। फैमिली हमारी क्या है? होमिनिडी। और हाउस फ्लाई की क्या है? म्यूसिडी। बहुत से लोग मस्कीडी भी कहते हैं। देन हमारा जेनस है होमो, और हमारी स्पीशीज है सेपियंस। ऐसे ही हाउस फ्लाई का जीनस है मस्का, और ये है डोमेस्टिक। राइट। तो बेटा ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए टेबल, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इट। ऑल गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं आपके अगले पॉइंट पर, क्योंकि अब हमें क्या करना है। देखो ये डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे कि स्पीशीज के ग्रुप को जेनस कहते हैं, जेनस के ग्रुप को फैमिली, फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर, ऑर्डर के ग्रुप को क्लास, क्लास के ग्रुप को प्लांट्स में डिवीजन कहते हैं, लेकिन एनिमल्स में फाइलम कहते हैं। और डिवीजन्स या फाइलम दे कंपोज द किंगडम। तो बस डेफिनेशन तो आपने बना दी है। अब मुझे आपको बताना है कुछ टर्म्स। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म है जेनस को लेकर। जेनस दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 मोनोटिपिक जेनस, और दूसरे होते हैं पॉलीटिपिक जेनस। मोनोटिपिक जेनस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटिपिक जेनस? इसका मतलब होता है अ जीनस with a single species only. Example, होमो। होमो को सिर्फ एक ही तरह से लिखा जाता है, होमो सेपियंस। अब आप बोलेंगे सर होमो हैबिलिस ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। होमो के आगे एक ही आजकल स्पीशीज है, दैट इज सेपियंस। तो ये क्या हो गया? मोनोटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस क्या होते हैं? अ जीनस विथ मोर देन वन स्पीशीज। एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 पैंथेरा। अगर पैंथेरा लियो है तो वो क्या है? दैट इज लायन। अगर पैंथेरा टिग्रिस है तो वो क्या है? क्या है वो? टाइगर, बाघ। और अगर वो पैंथेरा पार्डस है तो वो क्या है? लेपर्ड। तो पैंथेरा क्या हो गया? पॉलीटिपिक। ऐसे मैं आपको बता देता हूं सोलानम।
अगर है सोलानम ट्यूबरोसम, तो क्या है? दिस इज पोटैटो। इफ इट इज सोलानम मेलोंजेना, वो क्या है? ब्रिंजल। एंड इफ इट इज सोलानम नाइग्रम, इट इज मकोई। सोलानम नाइग्रम भी पूछा जा चुका है। तो ऐसे जीनस को हम कहते हैं पॉलीटिपिक जीनस, जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज होती हैं। ऐसे ही बेटा, जैसे आपका जेनस है, ऐसे ही है आपकी स्पीशीज। एक है मोनोटिपिक स्पीशीज, और दूसरी है पॉलीटिपिक स्पीशीज। मोनोटिपिक मतलब सिंगल, a species with a single subspecies. A species with a single subspecies. और इसका एग्जाम्पल क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। लेकिन पॉलीटिपिक स्पीशीज क्या होती है? अ स्पीशीज विथ मोर देन वन सबस्पीशीज और वेराइटीज और स्ट्रेन्स। अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल है, यहां लिखता हूं, ब्रासिका ओलिरेशिया। ये जो ब्रासिका ओलिरेशिया है, ये गोभीज होती है ना, गोभीज को डिनोट करता है। तो इसमें अगर ब्रासिका ओलिरेशिया बोट्राइटिस होती है, बोट्राइटिस, ये क्या होती है? फूल गोभी, दैट इज कॉलीफ्लावर। अगर ये होती है ब्रासिका ओलिरेशिया कैपिटेटा, तो ये होती है कैबेज, पत्ता गोभी। और अगर ये होती है ब्रासिका ओलिरेशिया कॉलेरोपा, तो ये होती है गांठ गोभी, दैट इज कॉल्ड नॉलखॉल। तो ये कैसा स्पीशीज हो गई? दिस इज पॉलीटिपिक स्पीशीज। ऑल गुड। ये समझना बहुत ज़रूरी है विद एग्जाम्पल्स। अब बेटा मैं आपके लिए एक फ्लो चार्ट टाइप बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनिमल्स। तो एक यहाँ पर हम हेडिंग लिख रहे हैं, एनिमल्स क्लासिफिकेशन। तो इसको इजी बनाने के लिए मैं 7 कैटेगरीज ऊपर लिख लेता हूं। तो सबसे पहले आई एम राइटिंग हियर किंगडम। अब एनिमल्स हैं तो डिवीजन तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। हियर आई एम राइटिंग फाइलम।
फाइलम के बाद आई विल बी राइटिंग क्लास। क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज एंड सो ऑन। तो ये सातों के सातों हमने ब्रॉड कैटेगरीज लिख ली हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। तो इसमें सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट, जैसे किसी को भी हमने लिख दिया एनिमेलिया। तो इस एनिमेलिया में कितने फाइलम हैं? 13 फाइलम हैं। कहाँ से? आपने पढ़ा है पॉरीफेरा, निडारिया, है ना, निडारिया को सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। फिर प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेटीहेलमिन्थिस, मॉलस्का, आर्थ्रोपोडा, सीलेंट्रेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे करके बहुत सारे फाइलम हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 फाइलम लिख देता हूँ, एक आर्थ्रोपोडा लिख देता हूँ, एक कॉर्डेटा लिख देता हूँ। आर्थ्रोपोडा, एक मैंने लिख दिया है कॉर्डेटा। अभी हम आर्थ्रोपोडा पर फोकस नहीं करेंगे, वी विल बी फोकसिंग ऑन कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा की 5 क्लासेस हैं। सबसे पहले है पाइसेस। ऐसा करते हैं, जिस पर हम कंसंट्रेट करेंगे ना उसी के नीचे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। पाइसेस, पाइसेस के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के बाद एवीस, और एवीस के बाद मैमेलिया। तो अभी मैं आपको मैमेलिया के बारे में बताऊंगा, तो मैंने मैमेलिया पर अंडरलाइन कर दिया। अब मैमेलिया में ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर की बात, ऑर्डर भी बहुत सारे हैं। मुझे तो ऐसा ध्यान है हमने 11th में 18 ऑर्डर्स पढ़े थे, जैसे कार्निवोरा, प्राइमेटा, लेगोमॉर्फिया, रोडेंशिया। खैर छोड़ो, फिलहाल हम 2 बात करते हैं। एक मैं बात कर रहा हूँ प्राइमेटा की, जिसमें बंदर आते हैं। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ कार्निवोरा। कार्निवोरा में कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं, तो कार्निवोरा को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब ऑर्डर के बाद आती हैं फैमिलीज। जो बिल्लियां होती हैं ना, बिल्लियां, बिल्लियों की फैमिलीज को फेलिडी कहते हैं, और जो डॉग्स होते हैं ना उनकी फैमिली को कैनिडी कहते हैं। तो कार्निवोरा की मैंने 2 फैमिलीज के बारे में बात की, फेलिडी और कैनिडी। तो अब मैंने फेलिडी और कैनिडी दोनों पर अंडरलाइन, ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में है, मैं आपको रे डायग्राम फॉर्म में बता रहा हूं। अब फेलिडी में क्या होंगे? जीनस होंगे। तो एक जीनस होता है छोटी बिल्लियों का, दैट छोटी बिल्ली की जीनस को हम कहते हैं, एक सेकेंड, फेलिस। फेलिस, और फेलिस की एक ही स्पीशीज में आपको बताऊंगा, डोमेस्टिका। तो पूरा नाम क्या हो गया? फेलिस डोमेस्टिका। और ये क्या होती है? हमारी घर वाली बिल्ली, डोमेस्टिक कैट। ऐसे ही एक बड़ी बिल्लियों का ग्रुप होता है, जेनस होता है, जिसको वी कॉल इट एज पैंथेरा। अब पैंथेरा में अगर वो है पैंथेरा लियो,
तो वो होगा लायन। अगर अभी पीछे बताया था, अगर पैंथेरा टिग्रिस है तो दैट विल बी टाइगर, और अगर वो पैंथेरा पार्डस है तो दैट विल बी लेपर्ड, तेंदुआ। अब कैनिडी की बात करते हैं। कैनिडी में एक आपका वो है, जीनस है, दैट इज कैनिस, और कैनिस में अगर स्पीशीज है फैमिलियरिस, दिस इज डॉग। फैमिलियरिस हमसे ऐसे याद कर लेना, हमें क्या कहते हैं, हमारे से फैमिलियर होता है। देन अगर ल्यूपस है, ल्यूपस में एल आ रहा है, तो वुल्फ में भी एल आ रहा है। फैमिलियरिस डॉग है, ल्यूपस वुल्फ है, और एक है ऑरियस। ऑरियस है सियार, जिसको हम कहते हैं जैकॉल। क्या कहते हैं? जैकॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने पैराग्राफ में लिखा है। वो वाले पैराग्राफ आप देखना जहाँ स्पीशीज के ग्रुप को जीनस, जीनस के ग्रुप को फैमिली, फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर, ऑर्डर के ग्रुप को क्लासेस, क्लासेस के ग्रुप को फाइलम, और फाइलम के ग्रुप को किंगडम दिया हुआ है। ऐसे ही एक हम लास्ट कर लेते हैं चलते चलते, दैट इज प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट्स क्लासिफिकेशन, तो इसमें भी मैं फटाफट क्या करता हूं, मैं इसमें फटाफट वो बना देता हूं। सबसे पहले किंगडम। अब ये प्लांट्स है तो इसमें फाइलम की तो जरूरत है नहीं, इसमें क्या होगा, डिवीजन। डिवीजन के बाद वी विल बी हैविंग क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, एंड जीनस के बाद स्पीशीज। ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द किंगडम प्लांटी। प्लांटी में 5 डिविजन्स होते हैं। कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, और हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज एंजियोस्पर्मी। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। एंजियोस्पर्मी में जो क्लासेस हैं वो 2 हैं। एक है मोनोकोटिलीडनेई और दूसरी है डाइकोटिलीडनेई, माने डाइकॉट्स वाली। तो ये मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी। मोनोकॉट का एक ऑर्डर का एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, और वो क्या है बेटा? वो है पोएल्स। पहले अब इसको पूरा कर लेते हैं। पोएल्स, पोएल्स की कौन सी फैमिली पढ़ी है हमने? पोएसी। और पोएसी में जेनस मैं आपको 3 बता देता हूं। सबसे पहला जेनस है ट्रिटिकम,
ट्रिटिकम की स्पीशीज है एस्टिवम, और एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? वीट, जो गेहूं हम खाते हैं। फिर सेकंड वन इज ओराइजा, ओराइजा की स्पीशीज है सटाइवा, और ये क्या है? राइस। थर्ड वन इज जिया, और इसकी स्पीशीज है मेस, ये क्या है? मेज। तो ये हो गई मोनोकॉट का एक आपका पूरा। अब हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि उसमें मिक्सअप ना हो जाए। अब ऑर्डर जो है वो क्या लेंगे हम लेंगे पॉलीमोनियल्स। क्या लेंगे? पॉलीमोनियल्स। एक और ले लेते हैं, सेपेंडेल्स भी ले लेते हैं। सेपेंडेल्स एंड द सेकंड वन इज पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स को हम डिटेल में ले लेंगे। पॉलीमोनियल्स की फैमिलीज कौन सी ले लेते हैं? दो ले लेते हैं, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी। तो यहां हमने अंडरलाइन कर दिया सोलेनेसी को। अब सोलेनेसी में हम 3 जेनस ले लेते हैं। कौन कौन से? सोलानम, दतूरा एंड पिटूनिया। ये आप देखोगे आपको एनसीईआरटी में पैराग्राफ फॉर्म में मिल जाएगा। अब सोलानम की 3 स्पीशीज ले लेता हूं। सोलानम ट्यूबरोसम अगर है तो देन इट इज पोटैटो। अगर सोलानम मेलोंजेना है देन इट इज ब्रिंजल, बैंगन। और इफ इट इज सोलानम नाइग्रम इट इज मकोई। तो इस तरीके से 3 ये हो गए हैं, ठीक है। अब दतूरा, दतूरा की एक स्पीशीज है स्ट्रोमोनियम। ये क्या होता है? धतूरा। आपको याद होगा कांटे कांटे जैसा फ्रूट होता है जो शिवरात्रि पर शिव जी को चढ़ाते हैं। और पिटूनिया एल्बा, ये फ्लावरिंग प्लांट है पिटूनिया। तो बच्चों इस तरह से हमने एक प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है और एक एनिमल का क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अब आप देखें हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ छूट तो नहीं गया। हमने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, टॉटोनेम, ऑटोनेम, कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स पढ़ ली, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ ली जिसमें 28 कैटेगरीज हैं, जिसमें से 7 ब्रॉड हैं ज़रूरी वाली और 21 इंटरमीडिएट या एक्सेसरी हैं, वो आपको याद नहीं करनी। और हमने सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी पढ़ ली हैं, और क्या पॉलीटिपिक स्पीशीज़ क्या होती है, मोनोटिपिक स्पीशीज़ क्या होती है, ये और ये वाले जो मैंने चार्ट्स बनाए हैं ये बिल्कुल ब्रेन में एंटर कर लेना, क्योंकि जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है ये आपके मतलब काम में आ जाए, ठीक है। और बेटा हमारा एक रूल है कि हम चलते चलते लास्ट में एक क्वेश्चन करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ द गिवन कैटेगरीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब जो आपकी 28 कैटेगरीज है उसमें से इनमें से ब्रॉड कौन सी है। तो जो ब्रॉड होगी उस पर हम बी लिख देंगे और जो इंटरमीडिएट होगी उसको हम कट कर देंगे। स्पीशीज ब्रॉड कैटेगरी है, ट्राइब इंटरमीडिएट है, फैमिली ब्रॉड है, फाइलम ब्रॉड है, जीनस ब्रॉड है, सब फैमिली इंटरमीडिएट है, सीरीज भी इंटरमीडिएट है,
लेकिन ऑर्डर ब्रॉड है। अब ब्रॉड वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर हो गया बी। 5 categories are broad categories, other ones are intermediate categories. All good? तो बच्चों आज हमने ये करके कंप्लीट कर दिया है और आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। From tomorrow we are going to start up with chapter number 2, that is biological classification. तो आप लोग आते रहिए, नोट्स बनाइए, उस टॉपिक को फिर नोट से और एनसीईआरटी से पढ़िए और जो आज हम डीएस से देंगे उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो विद चैप्टर नंबर 2।